students, my name is Pranjal Tripathi and today I will teach you the remaining part of chapter 3, that is gravitation. In the previous video I have taught you about this chapter and several other topics about the introduction of the chapter, what is gravitation, what is gravitational force, how Newton gave this universal law of gravitation, and I have taught you about universal gravitational constant, that is G, capital G, not small g. Small g is what? It is acceleration due to gravity, and capital G is gravitational constant. I have taught you about its value, that is 6.67 into 10 to power minus 11 Newton meter square per kg square. Today we will discuss some further topics of this chapter. So in that previous video I have taught you about this universal law of gravitation. Before starting the chapter, I want to state that universal law of gravitation holds good for all the places, means it is applicable at every position, at every location on the earth. It is also applicable for the bodies of large masses as well as bodies of small masses, means it is applicable for the bodies irrespective of their mass. Although those bodies which have large mass will possess more gravitational force, but it is not like that. If two bodies are there and their masses are very small, then there will be universal gravitational force between them. Although it may be little in quantity, little in magnitude, but there will be some kind of universal gravitational force. This is said or described by universal gravitational law. So today we will move on our further topics, that are how to determine the value of gravitational constant. We have studied that the formula of gravitation was, gravitational force का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. Now we have to determine the value of gravitational constant. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हमको निकालनी है और हमने पढ़ा था फॉर्मूला क्या, G F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. Now the thing which we have to do now is take some small balls that are made up of gold. सोने से बनी हुई कुछ छोटी सी हमें बॉल लेनी है, दो, and these two balls are suspended with a thin delicate thread. The thread should be strong also. थ्रेड जो है वो ऐसा होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग हो, थ्रेड वीक नहीं हो, डेलिकेट नहीं. डेलिकेट मतलब ज्यादा ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो ब्रेक हो जाए, टूट जाए. सो these two balls are made up of gold. These two balls are made up of gold and these are separated with certain distance. कहने का मतलब क्या है कि ये जो आपकी जो बॉल्स थी गोल्ड की, ये r डिस्टेंस के द्वारा सेपरेट है. इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, r डिस्टेंस. r डिस्टेंस होने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो भी मास है इन गोल्ड बॉल्स का
वो हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे एंड वी विल मेजर द फोर्स ऑल्सो। इसके बॉल के बीच में जो फोर्स है वो भी मेजर करेंगे। देन G इक्वल टू FR स्क्वायर अपॉन M1 M2। हमको मास ऑफ फर्स्ट बॉल पता है, मास ऑफ सेकंड बॉल पता है, फोर्स हमने कैलकुलेट कर लिया इनके बीच में। R हमें पता है कि R कितनी डिस्टेंस पे हैं ये दोनों बॉल्स। देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दैट इज 6.67 into 10 to the power -11। ये हमको वैल्यू यहाँ पर जब ये सारी वैल्यूज हम रखेंगे और सॉल्व करेंगे, then we will get the value of this gravitational constant, that is 6.67 into 10 to the power -11 Newton meter square per kg square. Now we will discuss the characteristics of gravitational force. ग्रेविटेशनल फोर्स की अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है द ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन एक्शन एट अ डिस्टेंस। कहने का मतलब है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है एक डिस्टेंस पर लगता है, एक ऐसा फोर्स है जिसमें कि दो बॉडीज के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होना जरूरी है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन इनवर्स स्क्वायर फोर्स। इनवर्स स्क्वायर फोर्स है। कैसे? द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज वेराइज इनवर्सली टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। आप ये फॉर्मूला देख सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है F, वो कैसे वेरी कर रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। R square is what? That is the square of distance between two bodies. तो अभी आपकी ये दो कैरेक्टरिस्टिक पता चली आपको। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक वाज दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज अप्लाइड ऑन टू बॉडीज दैट आर सम डिस्टेंस अपार्ट। उन दोनों बॉडीज के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होना जरूरी है। एंड ऑल्सो द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दोज टू बॉडीज। ये है कैरेक्टरिस्टिक नंबर 2। The third characteristic is gravitational force between two bodies or objects form an action-reaction pair. जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसमें क्या होता है? एक्शन रिएक्शन पेयर बनता है। मीन्स एक बॉडी अगर दूसरी बॉडी पर एक्शन कर रही है तो दूसरी बॉडी उस पर उतना ही रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगी। द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इज gravitational force between two bodies is very small and large for two large bodies. Means कि gravitational force अगर दो bodies में लग रहा है और दो bodies जो हैं that are very small, means teeny bodies are there, then there will be very small force of gravitation between those two bodies. The magnitude of force will be very less or very small. But if there are two bodies that are very big, अगर यहाँ पर कोई दो बॉडीज होती हैं जो कि बहुत बड़ी हैं, बहुत ज्यादा, then there will be a noticeable force of gravitation between them. In the earlier video I have told you an example of Earth. अर्थ में हम लोग क्या करते हैं? ग्रेविटेशन हम लोगों को दिखाई देता है। क्यों? बिकॉज द साइज ऑफ अर्थ इज वेरी बिग एज कंपेयर्ड टू द ऑब्जेक्ट्स दैट आर प्लेस्ड ऑन अर्थ। अब जैसे कि मेरे हाथ में ये चौक है, इसको मैं अगर छोड़ूंगा तो ये नीचे आएगी। क्यों नीचे आई? यहां पर हमको ग्रेविटेशन का इफेक्ट क्यों देखने को मिला? क्योंकि ये चौक का साइज जो है अर्थ के साइज के कंपैरिजन में वेरी स्मॉल, बहुत ही स्मॉल। वी कैन से इट इज नेग्लिजिबल व्हेन कंपेयर्ड टू द डायमीटर और साइज ऑफ अर्थ।
जब ऐसे केस होते हैं, जहां पर ऐसे केस होते हैं, वहां पर हमको ग्रेविटेशन का इफेक्ट देखने को मिलता है, वहां पर हमको ग्रेविटेशनल फोर्स देखने को मिलता है। अगर आप कहें कि ये दो चौक हैं, दीज आर वेरी स्मॉल क्वांटिटीज और स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, इन दोनों चौक के बीच में भी कोई ना कोई ग्रेविटेशनल फोर्स है, बट वी कैन नॉट नोटिस इट, ये हमको दिखता नहीं है, ना ही हम इसको नोटिस कर सकते हैं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि हर दो बॉडीज के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइजेस। वैसे ही इन दो चौक के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, बट it is not noticeable. So students, our next topic is the significance of universal law of gravitation. Universal law of gravitation का significance क्या है, उसका महत्व क्या है, what are the applications and the uses. In that topic, the first heading or the first point is the existence of solar system. Existence means solar system का होना, यही यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का पहला सिग्निफिकेंस है कि हमारा सोलर सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसमें क्या है, ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट्स। मीन्स कहने का क्या है कि जो सन है उसके चारों ओर प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। तो रिवॉल्व किसके कारण कर रहे हैं, ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट्स। उस सन और वो जो प्लैनेट्स घूम रहे हैं उनके बीच में क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है। द फोर्स रिक्वायर्ड बाय प्लैनेट टू मूव अराउंड द सन, दैट इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। अब जो फोर्स है, एक किसी प्लैनेट को फोर्स चाहिए होगा ना घूमने के लिए, ऐसे तो घूमेगा नहीं। जो फोर्स वो प्रोवाइड किया जाता है वो किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, सन के द्वारा, एंड दैट फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। आई हैव टोल्ड यू अर्लियर व्हेन आई स्टार्टेड द चैप्टर व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो व्हेन सेंट्रीपिटल फोर्स वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर एंड इट कीप्स बॉडी मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ और ए सर्कुलर ऑर्बिट। अब वही उसी चीज का एप्लीकेशन यहां पर भी लागू हो गया कि सन है बीच में, उसके चारों ओर क्या कर रहा है, प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है। अब प्लैनेट को जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है दैट इज फ्रॉम द सन। इट मीन्स वी कैन से दैट द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन। जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसके द्वारा मिल रहा है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सन एंड द प्लैनेट। नाउ इन केस ऑफ द प्लैनेट्स दैट आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन, देन द सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन और प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट। कहने का मतलब क्या है कि द सेंट्रीपिटल फोर्स है वो सन के द्वारा मिलता है, या हम कह सकते हैं कि उस फोर्स के द्वारा मिलता है जो कि सन और प्लैनेट के बीच में है। बट इन केस ऑफ द satellites that are revolving around our planets, then the centripetal force is provided by the force of attraction between the planet and that satellite. दो केसेस हैं, दो केसेस कैसे हैं कि सन के अराउंड भी प्लैनेट मूव करते हैं और प्लैनेट के अराउंड उनके सैटेलाइट्स मूव करते हैं ना। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है सन के केस में, कौन से केस में, सन के केस में, जब प्लैनेट रिवॉल्व करेंगे सन के अराउंड, देन द सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सन एंड द प्लैनेट्स, while in case of the satellites that are revolving around the planets, then the centripetal force will be provided by the force of attraction between planet and satellite. तब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके द्वारा मिलेगा, प्लैनेट्स और सैटेलाइट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उससे मिलेगा। कमिंग ऑन आवर सेकेंड
point, that is high ocean tide. High ocean tide means जो ओशन में हम लोग देखते हैं कि बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं ज्वार भाटा. दैट इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स किसका? मून का. ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून. लेट अस नाउ सी हाउ द ओशन टाइड्स टेक प्लेस. अब हम लोग बात करेंगे कि ओशन टाइड कैसे वो होता है, कैसे टेक पार्ट करता है, कैसे टेक्स प्लेस, मतलब कैसे होता है. टाइड्स इन द ओशन आर फॉर्म ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन मून एंड द वाटर इन ओशंस. टाइड्स जो होते हैं, टाइड्स मीन्स हमने अभी आपको बताया कि हाई टाइड, लो टाइड, इनको बोलते हैं हिंदी में ज्वार भाटा. ज्वार भाटा में क्या होता है? बड़ी ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं समुद्र में. तो ये क्यों होता है? दैट इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड द मून. अवर थर्ड पॉइंट इज द प्लैनेट्स एंड देयर मून्स. अब प्लैनेट्स का जो मून है वो भी एक दूसरे से अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा बाइंड है. मीन्स हमारी अर्थ की बात कर लेते हैं. लेट अस टॉक अबाउट आवर प्लैनेट अर्थ. द मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ. देन द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड द मून. जो अर्थ और मून के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उससे क्या मिलता है? सेंट्रीपिटल फोर्स. किसको? मून को. किस लिए? अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए. Our third topic is the revolution of artificial satellites. अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का भी सेम फेनोमेना है, सेम प्रोसेस है, कि उनका भी रिवॉल्यूशन कैसे होगा. किसी प्लैनेट के अराउंड मूव करेंगे वो सैटेलाइट, और उन सैटेलाइट्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से. किसके किसके बीच में? सैटेलाइट और दैट प्लैनेट के बीच में, जिसके अराउंड वो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है. रेनफॉल आप लोग देखेंगे कि यूजुअली क्या होता है कि इवेपोरेशन ऑफ वाटर होता है. वाटर इवेपोरेट होकर कहाँ जाता है? एटमॉस्फेयर में. व्हेन इट कंडेंसेस इट फॉर्म्स टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर एंड दे कम ऑन आवर अर्थ. यूजुअली ऐसा कैसे होता है? अर्थ पर ही क्यों आती हैं? ऐसा हो जाए कि रेनफॉल अर्थ पर आए ना ऊपर चली जाए, ऐसा नहीं होता ना. क्यों नहीं होता? बिकॉज अर्थ अट्रैक्ट्स इट. अर्थ हैज द प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेविटेशन. देयर इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैट रेनफॉल एंड आवर प्लैनेट अर्थ. एंड द सिक्स्थ टॉपिक इज, सिक्स्थ पार्ट, और वी कैन से द सिक्स्थ पॉइंट इज मैन ऑन अर्थ. वी आर स्टैंडिंग ऑन अर्थ. Why? By virtue of gravitation force of earth, or we can say attraction force of earth. Earth attracts us. कहने का मतलब क्या है कि अर्थ हमको अट्रैक्ट कर रही है, तभी हम इस अर्थ पर खड़े हैं. इफ वी जंप, अगर हम जंप भी करते हैं तो घूम के वापस नीचे ही आते हैं. ऐसा नहीं होता. अगर इफ देयर विल बी नो ग्रेविटेशनल फोर्स, देन व्हाट विल हैपन? अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा तब क्या होगा? तब ये होगा कि इफ वी ट्राई टू जंप, अगर हम लोग जंप करते हैं, देन वी विल मूव अपवर्ड्स. हम लोग ऊपर ही चलते चले जाएंगे. क्यों? क्योंकि बिकॉज देयर विल बी नो ग्रेविटेशनल फोर्स. अर्थ विल नॉट अट्रैक्ट आवरसेल्व्स टू इट. अर्थ हम लोग को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगी इन एब्सेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. तो हम लोग अगर जंप करेंगे तो ऊपर की ही डायरेक्शन में चलते चले जाएंगे. सो दिस वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन. केपलर जो थे वो एक साइंटिस्ट थे, एस्ट्रोनॉमर थे. उन्होंने कुछ लॉज दिए हैं प्लैनेटरी मोशन से रिलेटेड.
बिकॉज केपलर से पहले भी कई सारे एस्ट्रोनॉमर हुए, बट दे कुड नॉट टेल द मोशन ऑफ प्लैनेट्स वेरी एक्यूरेटली। उनका जो एक किसी भी साइंटिस्ट की कोई थ्योरी नहीं आ पाई जिससे वो प्लैनेट्स के मोशन के बारे में कोई चीज बता पाए। देन केपलर में कुछ सिद्धांत दिए, कुछ लॉज दिए। दीज लॉज आर पॉपुलरली नोन एज केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। प्लैनेटरी मोशन मीन्स प्लैनेट के मोशन से रिगार्डिंग। अब इसमें भी केपलर के 3 लॉज आर देयर, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। द फर्स्ट लॉ इंडिकेट्स दैट द लॉ ऑफ ऑर्बिट्स means all the planets revolve around the sun in different elliptical orbits and the sun is located at one of the focus point। कहने का मतलब क्या है कि तो फर्स्ट लॉ इनका जो था, फर्स्ट लॉ इंडिकेट्स दैट ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन द इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट कीपिंग सन एट वन ऑफ इट्स फोकस। कहने का मतलब ये है कि बाई चांस मान लेते हैं कि ये सन है, एंड ऑल द प्लैनेट्स revolve around the sun in elliptical orbit, keeping the sun at one of its focus। अब ये बात आप लोग जान लीजिए कि किसी ये जो आपको दिख रहा है, this shape, this is called elliptical shape और ellipse। इलिप्स के 2 फोकस पॉइंट होते हैं, एक पॉइंट ये कहलाता है फोकस, एक पॉइंट ये फोकस कहलाता है। तो सन जो है वो इस इलिप्टिकल पाथ के किसी एक फोकस पर ही लोकेटेड होगा, आइदर ऑन दिस फोकस और ऑन दिस फोकस, एंड द प्लैनेट विल revolve around the sun in elliptical path। elliptical path means this path। यूजुअली क्या होता है कि हम लोग समझते हैं कि जो प्लैनेट्स हैं वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं सन के चारों, बट एक्चुअली द पाथ इज, द ऑर्बिट इज इलिप्टिकल। सो दिस वाज योर केपलर्स फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ आप लोग समझ गए कि जिसमें कि ये है सन, ये है प्लैनेट, एंड दिस इज द elliptical path, this is focus 2 and this point is focus 1। so अब आप लोग समझ गए केपलर्स फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ इंडिकेट्स दैट ऑल द प्लैनेट्स revolve around the sun in elliptical orbit keeping sun at one of its focus point। अब बात करते हैं द लॉ ऑफ एरियाज। लॉ ऑफ एरिया क्या कहता है? द सेकेंड लॉ स्टेट्स दैट अकॉर्डिंग टू केपलर a planet revolves around the sun in such a way that the line joining the sun and the planet sweep equal areas in equal interval of time। कहने का मतलब ये है कि एक ऐसी लाइन जो कि ज्वाइन कर रही है प्लैनेट को सन से, वो इक्वल एरिया स्वीप करेगी, इक्वल एरिया कवर करेगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कैसे?
This is second. ये sun, this is sun, and this is planet. अब सेकेंड लॉ क्या कहता है कि लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड द प्लैनेट, दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग सन एंड द प्लैनेट. अब कुछ टाइम पर, फॉर एग्जाम्पल एट टाइम P1 वो प्लैनेट इस पोजीशन पर है. अब फॉर बाई चांस मान लेते हैं कि आफ्टर 1 आवर वो प्लैनेट इस पोजीशन पर पहुंच गया है एट टाइम T2. टाइम T1 और T2 में डिफरेंस कितने का था? 1 आवर का डिफरेंस. ठीक है, तो इन दोनों के बीच में T2 माइनस T1 यहां पर हम आपको बता देते हैं. T2 माइनस T1 लेट अस सपोज 1 आवर. ये हमने सपोज किया कि 1 घंटे पहले ये प्लैनेट इस पोजीशन पर था, 1 घंटे बाद ये प्लैनेट इस पोजीशन पर आ गया. नाउ द एरिया स्वेप्ट बाय दिस लाइन, मतलब ये जो लाइन है इसके द्वारा एरिया जो कवर किया वो ये कवर किया गया. पहले ये लाइन यहां से यहां तक थी, अब ये लाइन यहां पर पहुंच गई इस पोजीशन पर. तो जो एरिया इस लाइन ने कवर किया ऐसे जाके, पहले ऐसी थी अब ऐसी हो गई, तो ये जो बीच का एरिया कवर हुआ है दिस इज एरिया A1. अब चलते चलते बाय चांस ये प्लैनेट जो है कुछ इसके पास आ गया यहां एट टाइम T3 जब इस पॉइंट पर आएगा तो लाइन ज्वाइनिंग सन एंड प्लैनेट विल बी दिस. अब आफ्टर 1 आवर जब यहां पर T3 पर पहुंच गया, T3 के 1 घंटे बाद एट T4. अब T4 और T3 में भी डिफरेंस कितने का था? 1 आवर का. कहने का मतलब कि टाइम डिफरेंस देखिए, पोजीशन चेंज हो रही है, पोजीशन के साथ टाइम डिफरेंस वही रह रहा है. मतलब 1 घंटे पहले यहां पर था, 1 घंटे बाद यहां पर प्लैनेट आ गया, 1 घंटे अब ये प्लैनेट चल के इस पोजीशन पर आया और उसके जब यहां पर पहुंच गया उसके 1 घंटे बाद ये प्लैनेट यहां पर आ गया. लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट इज दिस. तो जो एरिया कवर हुई इस लाइन के द्वारा दैट इज दिस पोर्शन. अब देखिए ये जो एरिया है दैट इज A2. अब अकॉर्डिंग टू केपलर्स सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन दिस एरिया A1 इज इक्वल टू द एरिया A2. अब आप ऐसे भी देख लीजिए, ये एरिया देखिए यहां से सन से प्लैनेट की दूरी ज्यादा है. ये आपको देखने में लग रहा है कि एरिया कम है, लेकिन दूरी ज्यादा है तो उतना ही एरिया ज्यादा कवर कर रही है ये लाइन. विड्थ इसकी भले ही कम हो बट लेंथ तो है ना. हियर देखिए प्लैनेट कितने पास में सन के, तो जैसे ही ये यहां पर आएगा और 1 घंटे बाद तुरंत यहां पर आ जाएगा, तो जब लाइन है जो लाइन है प्लैनेट को सन से जोड़ रही है वो स्वीप करेगी दिस एरिया. लाइक दिस. तो जो एरिया A2 है वो एरिया A1 के इक्वल होगी अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन सेकंड. नाउ द थर्ड लॉ ऑफ केपलर्स प्लैनेटरी मोशन indicates that the square of time period is directly proportional to the radius of the orbit of planet. Means जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है, टाइम पीरियड मीन्स
कोई प्लैनेट सन का एक रिवॉल्यूशन करने में कितना टाइम ले रहा है, दैट इज टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट। तो इसका स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस किसकी, ऑफ द ऑर्बिट। रेडियस किसकी, ऑर्बिट की रेडियस मींस वो ऑर्बिट जिस ऑर्बिट पर प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड, उस ऑर्बिट की रेडियस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दिस इज थर्ड लॉ। तो आप लोगों ने तीनों लॉज पढ़ लिए, यू हैव अंडरस्टूड ऑल द थ्री लॉज ऑफ केपलर्स प्लैनेटरी मोशन। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। केपलर्स लॉ इज asked in your examinations often, so please kindly emphasis on this topic very carefully. If you have any doubt, then you can ask on your WhatsApp group.